بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی تنازعات کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ڈیاگو گارشیا پر اپنے بمبار جہازوں کو تعینات کیا ہے، جو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ پر شدید بمباری جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ بھرپور جواب دے گا۔ یہ کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری مشرق وسطی اور عالمی معیشت پر پڑیں گے۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہے، جو دنیا کی تقریباً 20% تیل کی ترسیل کا اہم راستہ ہے۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے یا حملوں کی زد میں لے آئے تو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ عالمی معیشت، جو پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گی۔ حوثیوں نے پہلے ہی بحیرہ احمر میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے تجارتی جہازوں پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ اگر ایران بحیرہ احمر کو مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت شدید متاثر ہوگی، جس سے سپلائی چین میں مزید خلل پڑے گا۔ عرب ممالک کی پوزیشن واضح نہیں ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے حالیہ برسوں میں ایران سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ امریکہ کے اتحادی بھی ہیں۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ان ممالک کو ایک مشکل انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ ایران کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بڑے تنازع میں براہ راست ملوث ہونے سے گریز کریں گے۔ یہ ممالک ایران کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتے ہیں اور ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ممالک ایران کے قریب ہیں اور ممکنہ طور پر ایران کی حمایت بھی کریں گے۔ ناظرین، مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس واضح طور پر اسرائیل اور اپنے مفادات کا ساتھ دیں گے۔ یورپی یونین ایران پر معاشی پابندیاں عائد کر سکتی ہے، لیکن وہ کسی بڑے فوجی تصادم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ ایران کو جوہری معاہدے پر واپس آنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن ایران شرائط کو نرم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ایران اپنے جوہری پروگرام کو تیز کر سکتا ہے، جس خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل پہلے ہی ایران کے جوہری سائٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے چکا ہے۔ اگر براہ راست جنگ نہیں بھی ہوتی تو پراکسی جنگ ضرور بڑھے گی۔ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ان گروپ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے لبنان، یمن اور شام جیسے ممالک میں تشدد میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران دونوں ہی ایک بڑی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن دھمکیوں اور جارحانہ اقدامات سے یہ سلسلہ کسی بڑے تصادم کو جنم دے سکتا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے عالمی ادارے حالیہ برسوں میں اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ مشرق وسطی ایک بار پھر دھماکہ خیز صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تجارتی بحران اور دہشت گردی میں شدت عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہوگی۔ امید ہے کہ دونوں ممالک تنازع کو مذاکرات کی میز پر حل کریں گے، لیکن صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کئی بار اپنی پالیسی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر 2018 میں امریکہ کے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے
ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए इक्तिसादी पाबंदियां आयद की और ईरान को एक नए मुआहदे की पेशकश की, जिसकी कुछ अहम शराइत ये हैं। पहला, ईरान को अपने तमाम जौहरी प्रोग्राम बशमूल यूरेनियम इंचरमेंट और प्लूटोनियम प्रोडक्शन मुस्तकिल तौर पर बंद करनी होगी। बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को किसी भी जौहरी साइट तक गैर मशरू रसाई दी जाएगी। दूसरा, ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद करनी होंगी, खास तौर पर ऐसे मिसाइल जो जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हों। तीसरा, ईरान को लबनान, हिजबुल्लाह, यमन, हौसी, इराक, शिया, मलेशिया और शाम में अपनी मुदाखलत ख़त्म करनी होगी। अमेरिका चाहता था कि ईरान खिते में अपनी तखरीबकार सरगर्मियां बंद करे। चौथा, ईरान को तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करना होगा जो ईरान में कैद हैं। अगर ईरान ये शराइत मान ले तो अमेरिका इक्तिसादी पाबंदियां हटाने पर गौर कर सकता है। ट्रंप ने अगस्त 2020 में ईरान के सदर हसन रूहानी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन साथ ही ये वाज़ेह किया कि ईरान को पाबंदियों का सामना जारी रहेगा जब तक वो जौहरी हथियारों का पीछा नहीं छोड़ता। खत में ईरान को तंबीह की गई कि अगर वो मुआहदे पर वापस नहीं आता तो पाबंदियां और सख्त होंगी। ईरान ने ट्रंप की शराइत को मुस्तरद कर दिया था और उन्हें इक्तिसादी दहशतगर्दी और गैर माकूल मुतालबात करार दिया था। ईरान का मौक़िफ़ था कि वो अपने दिफाई मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा, इलाकाई असर रसूख को छोड़ने पर तैयार नहीं है। ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शराइत मानना मुश्किल है क्योंकि ये उसकी सलामती और इलाकाई पॉलिसियों पर शदीद ज़रब लगाती है। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब अमेरिका पहले पाबंदियां हटाए। ट्रंप की पेशकश ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं थी और मौजूदा सूरत हाल में भी ईरान अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुस्तकबिल में अगर अमेरिका और यूरोप इक्तिसादी दबाव कम करे तो ईरान कुछ लचक दिखा सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुआहदे के इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये वाज़ेह होता है कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के खिते में एक नई और ख़तरनाक कशीदगी पैदा हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने में ये नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका का डायगो गार्सिया में फ़ौजी तैनाती बहरे हिंद में एक अहम अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है जो चीन, ईरान और बहरे हिंद की सलामती के लिए अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है। 40,000 फ़ौजियों, 6 B-1, B-2 बमबार तैयारों की तैनाती से ज़ाहिर होता है कि अमेरिका खिते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। नाज़रीन, हालिया दिनों में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाने पर जोर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत को तरजीह दे रहा है। ये बातचीत कतर में होने वाली 1-to-1 मुलाकात में आगे बढ़ेगी और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अमेरिका ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में नरमी कर सकता है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी सतह पर भी तज्ज़ियाकारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान को खिते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक है। नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी या मुआशी इक़दामात को मज़ीद सख्त करे ताकि तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार हो जाए। इसराइल ने माजी में भी ईरान के जौहरी साइटों पर हमलों की धमकियां दी हैं और नेतन्याहू का मानना है कि सिर्फ अमेरिका की
ताकत ही ईरान को रास्ते पर ला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहता है। ट्रंप इंतजामिया का ख्याल है कि तनाज़े का हल फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। कतर में होने वाली मुलाकात में अमेरिकी और ईरानी नुमाइंदों ने एक दूसरे के साथ बराह रास्त बातचीत करने की कोशिश की है, जिससे मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो अमेरिका ईरान पर लगाई गई मुआशी पाबंदियां नरम करने पर गौर कर सकता है, जिससे तेहरान को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके खिते पर दूर असरात मरतब हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसराइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक जो ईरान के सख्त मुखालिफ हैं, इस मुआहदे से बहुत नाखुश हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर पाबंदियां नरम होती हैं तो ईरान की मईशत को तक़वियत मिलेगी, जिससे खिते में उसका असर रसूख बढ़ सकता है। ईरान लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी बागियों और शाम में अपने इत्तेहादियों को मजीद सपोर्ट कर सकता है, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा है। आलमी बिरादरी अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को बड़ी अहमियत दे रही है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इस बातचीत की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जौहरी तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ इसराइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक इस मुआहदे के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि ये ईरान को मज़ीद ताकतवर बना देगा। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में ईरान के हवाले से वाज़ेह इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। जहां नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम चाहते हैं, वहीं ट्रंप मुज़ाकरात की राह अपना रहे हैं। आने वाले दिनों में कतर में होने वाली बातचीत के नताइज खिते की सियासत पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर मुआहदा हो जाता है तो ईरान को मुआशी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो तनाव और बढ़ सकता है। फ़िलहाल दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर लगी हुई हैं।